students, today I am again here with you with new topic, functions of noun, that we can say cases of noun. In previous videos we have discussed noun and all kinds of noun. Hope you all have understood well. So आज मैं लेकर आई हूँ एक noun सेंटेंस में कौन कौन से रोल प्ले कर सकता है. It means what are the functions of noun. Noun can be subject in a sentence. Noun subject भी बन सकता है. Noun can play role of object. Noun can be object also. It means objective case. Noun can be used to show possession. It means possessive case. Noun can be used to address someone. Rohit, come here. So there are different cases of noun. और cases में हम क्या पढ़ते हैं? Cases में हम पढ़ते हैं एक noun क्या क्या फंक्शन कर सकता है एक सेंटेंस में. यह हम डिटेल में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट, व्हाट कम्स इन आवर माइंड? A sentence has a structure, subject plus verb. The basic need of sentence is a sentence must have subject and verb. और नाउन का मेन रोल क्या है? नाउन का मेन रोल है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना. ठीक है, बिकॉज इन सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्टिव केस आई हैव रिटन नंबर 1. जैसे बुक में आप नॉमिनेटिव केस के नाम से पाएंगे. ओके, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोथ आर सेम. व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ सब्जेक्ट. Rohan plays. Okay, what is subject? Subject is that word that can be thing, that can be person of what we are talking about in a sentence. किसी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट कैन बी डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट कोई एक्शन भी कर सकता है. सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, एनी आइडिया. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक्शन विल बी डन बाय द सब्जेक्ट. We talk about subject in a sentence. Rohan plays. If I ask what the sentence is about, whom we are talking about, किसके बारे में बात हो रही है? रोहन के बारे में बात हो रही है. So Rohan is our subject. So what is the role of this noun? To be a subject in a sentence. ठीक है, ये subjective case है हमारे. Plays verb. Because we are talking about Rohan. Okay. Now next, Neetu talks too much. Okay. Neetu बहुत ज्यादा बातें करती है. What we are talking about? Who is the person we are talking about in a sentence? In this sentence, Neetu. Okay. We are talking about a girl, Neetu. So Neetu is subject. So what is the case of noun here? Subjective case. Okay. Noun is playing the role of subject here. Honesty is the best policy. Okay. What we are talking about here in this sentence? We are talking about honesty. ठीक है, हम बात कर रहे हैं honesty के बारे में. So honesty is subject. ठीक है. Policy is also a noun, but this is not subject. Okay, we will talk later in the next function. Here we will not talk about other roles, but we will talk about only subjective case. So to know the subject, we have to do one thing. We have to ask the question to the verb what or who. Okay? हमें verb से ये question पूछना है. और one thing you have to keep in mind, always subject is placed before verb. Okay? Verb के पहले का noun ही subject होगा हमारा. वर्ब के बाद का नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आई नो दैट यू ऑल वेरी. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेस के पहले रोहन है नाउन. टॉक, दिस इज वर्ब. वर्ब के पहले नीरू है. इज, दिस इज वर्ब. बट इसके पहले ऑनेस्टी है. ओके, सो दिस इज द मेन रोल ऑफ नाउन टू बी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. क्लियर? Now let's see other function of noun. Objective case means a noun can be object in a sentence of verb. A verb also, a preposition also. First we will see how a noun can be object of a verb. Rohan hit the ball.
What is the subject? We are talking about Rohan, so this is subject. Subjective case of noun. First noun this, second noun ball. Okay. Verb hit. If we ask question to the verb hit, what? What did Rohan hit? Answer comes ball. This is our object. To know the object, we have to ask the question to the verb. To know the object, we have to ask question to the verb what or whom. And what the answer comes, that will be our object. हमें verb से question करना है verb के object को जानने के लिए what और whom. और जो भी आंसर आता है वो हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ लेट्स सी. हाँ, वन थिंग मोर. ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं दो. देयर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Direct object means non-living thing. To know direct object, we have to ask question what to the verb. See, Rohan hit the ball. Hit what? Answer comes the ball. और ball क्या है हमारा? Non-living है. और आंसर क्वेश्चन what करने पे हमें आंसर मिला है. So ball is direct object. Ball is direct object. और जो भी लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा. लिविंग. ओके, लिविंग बीइंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे. सो क्लियर? फर्स्ट थिंग वी हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom टू द वर्ब. ओके. सेकेंड थिंग, जो नॉन लिविंग आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो लिविंग आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी. दिस इज सेकेंड वे. Ritu wrote a letter. Ritu, this is subject. Subjective case. Wrote, this is verb. Wrote what? Answer comes a letter. What did Ritu write? Answer comes letter. और letter हमारा क्या है? To know direct or indirect, what we have to see? Non-living or living? Non-living है या living है हमारा letter? Letter हमारा है non-living. So this is direct object. Clear? Now next, Maya gave food to the beggar. Maya, subject. Gave, verb. Now हमारे पास क्या है? Food भी है एक नाउन और beggar भी है. अब हमें देखना है कि food और beggar है क्या, कौन सा फंक्शन कर रहा है यहाँ पर. तो क्या करना हमें? To know the object, what we have to do? We have to ask the question what or whom to the verb. Verb हमारा gave है. Gave what? What did Maya give? Answer comes food. Food living है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. सो नॉन लिविंग क्या बनता है? नॉन लिविंग हमारा बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फूड, ये तो नाउन हमारा हो गया. क्लियर? नाउ सेकेंड नाउन, वन मोर लेफ्ट. माया गेव फूड टू द बेगर. गेव व्हाट? नो आंसर. गेव whom? यस, आंसर कम्स द बेगर. और बेगर क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग है? ऑफ कोर्स लिविंग है. सो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिसिन. द डॉक्टर, दिस इज डॉक्टर नाउन, पेशेंट नाउन एंड मेडिसिन नाउन. डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो सब्जेक्टिव केस बन गया. गेव हमारा वर्ब है. टू नो द ऑब्जेक्ट, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फर्स्ट इट इज ask question using what or whom to the verb. Gave what? The patient. No answer. Gave whom? The patient. Yes, we got the answer. और patient क्या है? नॉन लिविंग है या लिविंग है? ऑफ कोर्स लिविंग है. तो लिविंग क्या है? लिविंग हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हमारा एक नाउन और बच गया है. यहाँ भी पूछते हैं क्वेश्चन. Gave what? Some medicine. Yes. मेडिसिन क्या है? लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. तो ये हमारा बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? चलिए, व्हाट और whom से हमने क्वेश्चन पूछा. नंबर 1. नंबर 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने देख लिया. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट आपको ये देखना है. दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, दिस इज 3. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट.
कैन नॉट बी सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमेशा ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप ये देखिए, रोहन सब्जेक्ट है, बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों ही डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। ऋतु सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, दोनों ही डिफरेंट है। माया सब्जेक्ट है, फूड द बेगर, दे ऑल थ्री आर डिफरेंट। डॉक्टर सब्जेक्ट है, पेशेंट सब मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है। और हम देख सकते हैं डॉक्टर भी डिफरेंट है, पेशेंट भी डिफरेंट है, सब मेडिसिन भी डिफरेंट है। सो ये भी कंडीशन हमारी, ये सारे सेंटेंसेस पूरे करते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा क्या रहेगा इसमें, नंबर 4 है वर्ब हमारा एक्शन होगा, एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, एक्शन वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इट मीन्स हम ट्रांजिटिव वर्ब ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रिटन आफ्टर इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, यहाँ देख लेते हैं सब में एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिट एक्शन वर्ब हो रहा है, हिटिंग का एक्शन हो रहा है। राइट राइटिंग का एक्शन हो रहा है। गिविंग का एक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी गिविंग का एक्शन हो रहा है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि सारी जगह पर वर्ब क्या है हमारा, एक्शन वर्ब है। तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, व्हाट, सबसे पहले वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू नो द ऑब्जेक्ट, व्हाट और whom टू द वर्ब। क्लियर। नंबर 2 आपको देखना है, नॉन लिविंग है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग बीइंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन नॉट बी सेम। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा डिफरेंटली होते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब। और वर्ब हमारा कैसा होता है, वर्ब हमारा होता है एक्शन। क्लियर। नाउ चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नाउ लेट्स सी अदर फंक्शन ऑफ नाउन। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सेम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, बट लेट्स रीड these sentences, then we will understand it easily. Rohan plays football in the field. How many nouns are there? Okay, number 1 Rohan, proper noun. Football, this is also noun, common noun. And one more noun is field. So this is also common noun. Rohan, as we know, it is playing the role of subject. We will write here subject. Okay, this is verb. We will not talk about verb. Okay, okay, let's. Verb, plays football. If we ask question, plays what? Okay, what does Rohan play? Answer comes football, and that is non-living. So this is accusative case of noun, and that is direct object. Direct object. This is object of verb. ये verb का object है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और word है जो हमारा noun है, field। field word क्या है? What is the function of this noun? अगर हम क्वेश्चन करते हैं, plays what? Answer comes football. Clear? Let's ask. Plays what? Field. No answer. Plays whom? Field. No answer. It means this is not our object of verb. But ये noun तो है. It means there must be a role played by this noun. ठीक है, कोई ना कोई तो फंक्शन तो है ही है। तो हमें ये देखना है कि इस नाउन के पहले हमारा इन क्या है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा। और हमारा फील्ड क्या है, फील्ड नाउन है। तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, और आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, और जब हम प्रीपोजिशन के बाद नाउन को देखते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, बट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। नॉर्मली एग्जाम में वर्ब्स के काइंड पूछते हैं, और उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट वर्ब। तो हमें उस समय हमें वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट को बताना होता है। When particularly the question will be asked for prepositional object, that time we will mention this. ठीक है, चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। रीना kept the books on the table. रीना, this is playing role of subject, objective case. Kept verb है। In the same way, kept what? Books, non-living, so this is
direct object, objective case also. Kept, one more noun, this is also noun, number 1 noun this, number 2 noun this, number 3 table. What is the role here of noun? Table. अगर हम क्वेश्चन करते हैं kept what? Table. No answer. Wrong question. Kept whom? Table. No answer. टेबल नाउन है और नाउन के पहले हमारा लगा है प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्या नाउन बन गया? ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन होता है, ये तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट है हमारा प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउन का रोल ये भी। नेक्स्ट, सिया सब्जेक्ट, is playing verb, in the room. Now here also we cannot ask question, is playing what? What is Sia playing? In the room. No answer. Whom, if we ask question using whom also, we will not get answer this, in the room, ठीक है। in क्या है? in हमारा preposition है, preposition। और मैंने पहले ही बताया कि preposition के बाद जो भी रहेगा नाउन वो हमारा ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बट वो ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? वो ऑब्जेक्ट रहेगा प्रीपोजिशन का। इट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, दैट विल बी वेरी इजी इफ दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, कि अगर आप वर्ब के बाद बहुत सारे नाउन देखते हैं तो फिर इसमें से क्या होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको लेकर हम पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। बट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मीन्स वो नाउन जो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, उनको लेकर हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, रोहन प्लेज फुटबॉल, वी कैन इजिली मेक इट्स पैसिव टेकिंग फुटबॉल, बट वी कैन नॉट मेक पैसिव टेकिंग फील्ड। ओके, object will be subject will be object. This is the rule of active passive. So Rohan plays football. Football is played by Rohan. Okay, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ही गेम होता है एक्टिव पैसिव। बट इन द फील्ड को कैसे हम लेकर बनाएंगे? इन द फील्ड एज इट इज रिटन इन द सेंटेंस, इन द सेम वे इट विल बी रिटन इन पैसिव वॉइस ऑल्सो, एज फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन इन द फील्ड। ओके, वी विल कॉपी। Reena kept the books on the table. Okay, see, the books were kept by Reena on the table. We have not changed on the table, हमने change नहीं किया, हमने as it is लिख दिया। Sia is playing in the room, इसका हम पैसे बना सकते हैं? No. So I think you have understood well objective case also of noun. एक noun रोल प्ले कर सकता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का भी, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का भी, ठीक है।